जरूरी नहीं है कि जो अकेडमी के लिए आप अप्लाई करो वही आपको मिले. इट वाज ग्रेट. मेरे दोनों साल बहुत अच्छे थे. आई हैड द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइम. हे शिका, कैसी है? हाय, हाउ आर यू? बस बढ़िया यार, बढ़िया। तो क्या चल रहा है आजकल? Nothing new. I am just trying my best to pack everything and making up my mind to leave back home. होम का इतनी जल्दी? ऐसे तेरा दूसरा कौन सा, फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है? My second year. तो फिर एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, थोड़ा बताएगी? Okay, so to be honest, it was great. मेरे दोनों साल बहुत अच्छे थे. I've had the greatest of the greatest time. First year was a bit different than this year. First year क्यों? I was in Pune. हम्म। First year, okay, so मैं पूरा बताती हूँ. First year I was in Angers, that's a city in Pays de la Loire, a little bit on the हाँ हाँ। west of France. Académie de Nantes. And हम्म। it's a big city, to be honest, but not too big, not too small. It's a city where there's a ओके। lot of students, and it was fun. हम्म। And I got into a foyer de jeune travailleur, which ओके। is also in the city center. So it was great. I had great accommodation last year as well. And I was in Premier. It's not a lot of work, मतलब काम की अगर इस पे बात करी जाए तो it was not a lot of work. मतलब हम्म। what do you have to do? ठीक है। Basics, colors, shapes, and basic sentences. Like you don't have to work a lot, just have fun with the kids. हाँ हाँ। And this year it's quite different. I'm in secondaire, and I'm in a lycée. It's seconde, primaire, and terminale, which is 10th, 11th, and 12th, हमारे इंडिया के according. ओके। And I am in a small town. Town में नहीं, this is a suburb. और जहाँ हाँ पे हाँ। like families live, like the family area. There's not much to do in this town, and there's just people living with their families. And it's in the south of Ile-de-France. मतलब I'm still near to Paris, so I go to Paris. ओके। But I'm in a town called Mency. Yes. मेंसी? तो एकेडमी, एकेडमी द मेंसी, राइट? No, no, no. Académie de Versailles. Okay, désolé, so माय Ile-de-France is बैड, divided माय into बैड। three academies. हाँ हाँ। Académie de Paris, Académie de Versailles, and Académie de Créteil. So I'm in Académie ओके। de Versailles. तो वर्साई के अंदर है, तो फिर अभी कैसा है, मतलब तो फाइनेंस किस तरीके से मैनेज करती है तो अपने? Okay, so I get my usual salary, the assistant salary. And the great thing about me is that, as I said, I maxed out in the luck sector, like luck department. I have a host family for which हम्म। I don't pay any rent. तो देख, And जेलस मत करो और असिस्टेंट्स को ये बताकर, ठीक है? तो ये वाला मैं कट कर दूंगा, ठीक है? no, 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 you're not supposed to cut that. This is ओके। important information. People need to know that there are host families as well, and you can always find good people, हाँ हाँ। good experiences. You just have to look for it in the right direction. तो ये, So, हाँ हाँ, uh, बता, कंटिन्यू। I don't know मैं क्या बोल रही थी. You सो, continue. अबे यार, चल ठीक है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो दूसरा तो ऐसे सना, ये प्रोग्राम के बारे में तुझे, नोट असिस्ताना, असिस्ताना हमने बना दिया है, ठीक है? स्पेशली असिस्टेंट दोंगले प्रोग्राम के बारे में कैसे पता लगा तुझे? Okay, so I remember I was in college first year, and then हम्म। my professor, my जो हाँ, there was this professor who did that program once, and उन्होंने class में he really sat us down, and I was like उन्होंने पूरा explain करा, okay, so this is a program, ऐसे ऐसे करना होता है, and उस time पे जब वो गए थे, like 10 years ago maybe, व्हाट्स हिज he नेम? said only Porush sir. पौर सर, ओके। Yeah, ठीक है। I was an Amity, so Amity में Porush sir थे, who explained everything to us, and he told only 50 students आते हैं. I mean, अच्छा। back 10 years back, तो 10-50 जाते होंगे, and I was so excited about it since my first year. So I was like, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ गया था, मैं जर्मनी गया था, मैं बेल्जियम गया था, and then I went to Switzerland, and I had a lot of fun. मैं यहाँ था, वहाँ था. उन्होंने पूरी story बताई हमें एक क्लास में लेकर, and then we being like just teenagers and like बिल्कुल नए नए adulthood life में आए हैं, and you know getting to see the world बच्चे and बड़े this हो रहे हैं। beautiful world जो उन्होंने बताया हमें उस टाइम पर कि it was very different from Delhi lives and stuff. So I was so intrigued about that. And तब से ही I was stuck on this program कि मुझे करना है करना है करना है. And then also I saw a few posters in Alliance Française de Delhi. हाँ हाँ। And then yeah, and also one of my professors in Alliance talked about this program. जब मैं ओके। B1 में थी, yeah. अच्छा, तो तूने एमआईटी से भी स्टडी किया है और आलियन से भी स्टडी किया है, राइट?
Yes, I did my graduation from Amity University, Noida, and ओके। then but COVID चल रहा था, so we used to not like study too much. So I did like B1 का orientation देकर I got directly into B1. B1 ओके। Yeah, nice. तो अच्छा सही है, गुड मोटिवेशन। तो तूने जब अप्लाई किया था, जब तू ऐसे अप्लाई कर रही थी, तो फिर कुछ चैलेंजेस वगैरह फेस हुए या नहीं? जब मैं अप्लाई कर रही थी तो नो एज सच नहीं, मतलब द ओनली प्रॉब्लम वाज आई हैड टू गो टू माय कॉलेज एंड देन आस्क माय टीचर कि मेरा रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन लेटर बना दो, एंड देन बस बाकी लेटर तो मोटिवेशन लिखा था, आई वाज लाइक हाँ इसे हाँ। चेक कर लो प्लीज। एंड आईएलटीएस हो गया था, नॉट दैट डिफिकल्ट, मेरी डिग्री थी तो दैट वर्क, सो एवरीथिंग वाज लाइक इजी, ऐसे कुछ डिफिकल्ट था नहीं। लेट्स द मोटिवेशन लिखना वाज अ बिट ऑफ अ टास्क, नॉट गोना लाई, हाँ, अब बिकॉज तो मैं आपको जेन्युइनली, चैट जीपीटी आ गया ना यार। ओह यार अब तो चैट जीपीटी आ गया, यू गाइस आर सो लकी जो भी सुन यू रहे हैं ये। मैंने कहा बस भाई यहाँ तो अगर जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि तुम लकी हो यार, तुम चैट जीपीटी कर लो। चैट, हाँ यार चैट जीपीटी से। हमने सच में लाइक हमारे जमाने में, मैंने हम जमाना 2 साल पहले जब मैंने मेरा लिखा था पेपर से। जब मेरा जमाना था ना, जब मेरा जमाना था, उस टाइम पे हर एक चीज ना भाई खाते के अंदर होती थी, मैनुअली। एडल वेडल कुछ नहीं आया था उस टाइम पे। उस टाइम पे सारी एप्लीकेशन मैनुअली जाती थी। ओह हाँ, जब मैं आई थी लाइक लास्ट 2 इयर्स पहले, तो बेटेल का फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर था एडल का। तो मैं यार तूने लाइक पहले से जो जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो तूने कोई वीडियो पहले देखी हुई है या नहीं देखी हुई? इट्स सो, मतलब ऐसा, इट्स सो फनी कि जेन्युइनली जब मैं यहाँ पे लाइक मेरा सिलेक्शन हो गया था, एंड आई वाज लाइक गोइंग थ्रू द यूट्यूब वीडियोस, एंड अगेन 2 साल पहले तो कोई वीडियोस थी ही नहीं, अभी तो देयर आर हाँ। स्टिल असिस्टेंट्स हु आर लाइक मेकिंग वीडियोस एंड लाइक रैंडम देयर लाइव्स एंड स्टफ, हम्म। व्लॉग्स वगैरह। तब देयर वाज ओनली दिस वन गर्ल भावना क्वात्रा भाव who है was making भावना। vlogs, एंड उसके बाद आई डोंट नो, मैं घूमते घूमते तेरे उस पे भी आई थी, एंड देन आई सॉ वन ऑफ योर वीडियोस, एंड तूने एक्सप्लेन कर रखा था पीसीसी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, लाइक हाँ वेरी ओल्ड वीडियोस, मैंने सारी देखी है, एंड नाउ सारी। खुशी होते वो है भाई, हाँ, खुशी होती है, खुशी होती लिटरली है। एग्जैक्टली लाइक 2 इयर्स पहले मैंने सारी देखी है, मैं रात को बैठती थी बिकॉज रात में हम खाली होते थे, हाँ हाँ एंड हाँ। कोविड का टाइम था उस टाइम पे, तो मैं लिटरली रात को 2-2 3-3 बजे तक वीडियोस देखे जा रही हूँ, लोगों के व्लॉग्स देख रही हूँ, हाउ इज इट, व्हाट टू डू, बिकॉज एट दैट टाइम इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग, यू नो, you're leaving for a country and then you're too young, you haven't stepped out in the real world, and also हम तो कोविड वाले जनरेशन है, so कोविड वाली कॉलेज गए जनरेशन में। थे, कॉलेज में इतना नहीं गए थे, and then you're suddenly moving to another part of the world. सो यू It हैव। was हम्म। सो तो यार बड़ी बड़ी खुशी होती है मुझे जब यार मेरे व्यूअर्स जब सामने से बोलते हैं यार मैंने तेरी एक वीडियो देखी है। तो पता है क्या हुआ था, मैं एक बार जब मैं नीस में रहता था, साउथ ऑफ फ्रांस में, तो हाँ एक ना असिस्टेंट से ग्रुप आया हुआ था। तो वो हाँ सब बीच पे बैठे हुए थे, तो उसमें से एक मेरी एक दोस्त थी, तो उसने कॉल किया, राहुल हम ऐसे ऐसे बीच पे बैठे हुए हैं और मिलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। तो एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट। मैं लेट नाइट मैंने अपनी शिफ्ट खत्म की थी करीब 11 बजे, 12:30 बजे करीब। तो मैं अपना चला गया बीच पे। तो वहां पर नीस के अंदर क्या होता है, करीब 12-1 बजे ना बिल्कुल बीच साइड पे पूरा अंधेरा होता है, तो हम्म कुछ लाइट साइट नहीं होती। तो मैं गया तो ऐसे बिल्कुल ऐसे लाइन से जो चिड़िया नहीं बैठी होती हैं, उस पे तार पे, बिल्कुल हम्म। लाइन से सारे ऐसे बैठे हुए। तो मैंने कहा भाई इसमें से समझ ही नहीं आ रही कौन है मेरे दोस्त। तो फिर वो मुझे मिली, वो मैंने कहा हेलो। फिर मुझसे एक लड़की बोली, अरे आप तो वही हो ना जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, असिस्टेंट असिस्टेंट। ओह! मैंने कहा तो दिन बन यार गया होगा, भाई रात बन गई, कसम कुछ से, ऐसे। कसम से तूने मैंने कहा मेरी भाई, वीडियोस देखी, वाओ! मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तो एकदम भाई नेक्स्ट बहुत लेवल मजा। खुशी होती है। तो तू अपने फाइनेंस किस तरीके से मैनेज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि विद इन 800 यूरोज आई सो योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल की, तू इतनी सारी जगह घूमी हुई है और बहुत सारे असिस्टेंट हो। स्पेशली मेरा बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है, सच में मैं बहुत जेलस होता हूँ तुम लोगों से, कि भाई तुम 800 यूरो कमाते हो, ठीक है, और उसके अंदर तुम पूरा वर्ल्ड घूम लेते हो, और यहाँ पर हम परमानेंट जॉब करने वाले बंदे हैं, और हम सोचते रहते हैं कि भाई कब जाएंगे कब जाएंगे। तो कैसे तू मैनेज करती है फाइनेंस अपने? Okay, so there's a difference, I think. Firstly, assistants जब आते हैं, so they know that they're prioritizing their travel and not their हम्म। lifestyle. हम्म। Standard of living से ज़्यादा हम लोग फोकस शायद travel पे कर रहे हैं, because we are here for traveling. ठीक है, and हम्म। also we have 2 week off every other month. अक्टूबर में 2 week ऑफ है, दिसंबर में 2 week ऑफ है, फेब में 2 week ऑफ है, अप्रैल में ऑफ है, एंड देन मई से तो जब मौसम अच्छा होता है तो ऑफ ही ऑफ है. मौसम So तो everybody's doing that. So the first thing that every assistant does is like looking for a cheap accommodation. जी ओके। Lucky me got
next to free accommodation both the years. Mhm. Last year before year में it was barely like I paid rent, but then I had calf. And then हाँ, foyer जब खवाइये में जब आप होते हो तो foyer वाले ही calf के लिए आपकी अप्लाई करते हैं. Like the woman sat me फोये down. who for Yes. who is फोये वाले? फोये is like Okay, so this is like international people residents like जैसे cruise वगैरह okay. होते हैं वैसे ही foyer हाँ, the जनता ही है जो young working people होते हैं उनके लिए होता हम्म, है. It's a residence cruise जैसा same thing. So वो ही लोग अप्लाई करते हैं because of course सारे young लोग ही होते हैं तो everybody needs car. उन हम्म. लोगों ने अप्लाई किया, they just got it everything and done. I was barely paying what 100 जिसमें मेरे 12 meals included थे, like next to nothing last year. भाई बहुत सही है, तो And I got मील्स क्या है? full 70 75 जितना max percent calf होता है मुझे उतना max percent calf मिल रहा था last year. तो So it was also next to nothing. ये अभी मेरी एक असिस्टेंट से बात हुई थोड़ी देर पहले ही, तो शी सेड कि उसका वो कितने यूरो देती है, 200 यूरो रेंट देती है, जिसके अंदर से उसको 150 यूरो रिफंड आ जाता है कैफ होता है का, ऐसा. और 50 यूरो ही देती है. मैंने कहा भाई कि I remember मैं बताती हूँ if I like बिल्कुल break it down my rent last year का I think 350 was the rent of my room which included my bathroom, my mini fridge and cupboard and everything. I just have had a shared kitchen otherwise everything was mine. And 350 का rent था and then 12 meals लेना was compulsory. अच्छा, So it कंपल्सरी, went ओके. up. हाँ उसमें ना compulsory था but it went up to like 450 or something. But then 350 में से I got 350 में से I got rent 315. ओ भाई, अ, That was यार. the max level of CAF, the amount of CAF that you could get, and I got that because उन्होंने apply किया था. उनका तो पूरा tie-ups होता है उनसे. Like फोए में हाँ बहुत सारे. राइट, It was फोये, barely ओके. 35 if we do the math. मेरी math खराब है but still 35 बचा. हम्म. 35 was rent and then कितना 12 meals का होगा लगा लो total उसको मिला मिलू के 100 था मेरा. तो मील्स मील्स के अंदर क्या होता है, अच्छा अच्छा खाना होता था या फिर? To be like, honest, last year मैं नई नई आई थी and I हाँ was हाँ. not as versatile and as adaptive to the new cultures as I am right now. So हम्म. it was not that good for me. Like नॉन-वेज बहुत ज़्यादा था एंड देन आई मतलब मैं इतना नॉन-वेज नहीं खाती दैट टू विदाउट मसाला. ओ, तो इंडियंस को तो मसाले बहुत पसंद है. चिकन टिक्का वो बात अलग है यार. नहीं, 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 इट्स बॉइल्ड पूले एंड लाइक पोर्क एंड ये सब चीज़ें मिल रही है. तो इट वाज़ अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी स्टार्टिंग में एंड देन राइस तो प्लेन राइस है. लाइक प्लेन राइस में कैसे खाऊँ? कुछ साथ में होना चाहिए. सही में तो यार, वो प्रॉब्लम. हाँ. राजमा चावल कढ़ी चावल हो तो मजे भी आते हैं. तो मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था बट बिकॉज़ आई डोंट कुक अगेन अ प्रॉब्लम. अच्छा, तो यू मुझे डोंट कुक? आई डोंट लाइक कुकिंग. मतलब आई जस्ट फाइंड दैट प्रोसेस वेरी बोरिंग. चलो, आई लव कुकिंग यार, चलो ठीक ओह! ओके, फिर मेरी अच्छी बनेगी, उम्मीद है. है. भाई मैं 24-24 घंटे खाना बना, मतलब मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना. और तो मेरे हाथ का खाना खाइयो कभी, सब बुला रहा है मुझे. जब तू बोले. इंडिया जाने से पहले कभी भी आ जा. परसों जा रही हूँ मैं, कल आती हूँ. बिenvenue मैडम. मेर्सी. तो हाँ. कमिंग बैक, हुँ. हाँ, तो सबसे तेरा मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है आज तक का यहाँ पर फ्रांस में? मेमोरेबल मोमेंट ऐसे तो बहुत सारे हैं. मतलब जेनुइनली अगर मैं सोचने बैठूँ, आई हैव हैड द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ इन दिस 2 इयर्स. द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट. जेनुइनली मतलब बिल्कुल पोल से बाहर एक्सपीरियंसेस. बैडेस्ट ऑफ द मोमेंट्स भी थे, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स भी थे. बट मतलब आई कैन नॉट ऐसे कुछ एक मोमेंट नहीं बता सकती मैं. बट रिसेंटली अगर मैं बताऊँ, आई वेंट टू साउथ ऑफ फ्रांस विद माय होस्ट फैमिली. इट वाज़ अ हाँ, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट साउथ वेकेशन. ऑफ आई फ्रांस इज, लव्ड इट. साउथ ऑफ And फ्रांस I इज went to लाइक, Saint-Tropez with ओ, वो तो नेक्स्ट लेवल है. luxury vacation. तो it was great. And then उससे पहले मैं गई थी अभी because इस साल मैं ज़्यादा नहीं घूमी because last year घूम ली थी मैं. तो I like पूरा मैंने एक साथ अच्छे से vacation करके I made a 10-day trip to Spain and Portugal and I did every fucking thing. I did मेन नो. scuba, I did skydiving, I did Portugal में वो जो Benaguil Caves वाला boat tour यार है. मुझे स्काई डाइविंग करना है भाई. कहाँ किया तूने? Spain में Sevilla. ये कितना खर्चा कितना बैठता है स्काई डाइविंग का, इफ यू डोंट माइंड? Yeah, no, I think 375 था with skydiving, tandem जो आपके पीछे के साथ हम्म. होता है. हम्म. And then a camera flyer जो आपको साथ में बंदा और कूदता है आपकी फोटो खींचने के लिए. I was like, great. ओ, And then also, but because वो skydive वाली जगह is a very secluded place and it's not in the city, so you have to book a cab. अच्छा. वहाँ जाने के लिए, क्या? वहाँ आने के लिए, like 50 जाना, 50 आना, plus 100 कर लो. If you're with someone, that gets split up into two.
But यानी otherwise, it's like 500 400, 500 तब तक वो बैठ जाता है. 500 Yeah. यूरो का बजट लेके चलो तो यार मुझे तो करना है भाई। Skydiving is a must. मतलब if you're going to Spain and if you have the budget, if you can manage it, हाँ हाँ। do it. मैं बता रही हूँ क्या जिंदगी चेंज हो जाएगी. You will be fearless. तो भाई कितना मीटर होता है वो उसकी हाइट कितनी Depend करता है. मीटर? I think 15,000 feet is the highest that you can skydive. 15,000? Yeah, but मेरे ओके। टाइम पे 50,000 नहीं था because of some weather conditions I think. तो 13,000 feet से मैंने jump किया था, but it was great. भाई मतलब I साहब was एक तो मुझे 2000। height से डर नहीं लगता. Most people are afraid of height, but मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता. मुझे पानी में डर लगता है. So I was afraid for scuba. But sky में तो मैं ऐसी थी I'm gonna jump off the plane and वहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं पता है कभी कभी ऐसा होता है पैराशूट नहीं खुलता पता है कभी कभी ऐसा होता है ये हो जाता है वो हो जाता है I'm like shut up I know ऐसा कुछ भी नहीं होता है and they're like this is not fun she's not afraid at all she's not getting scared भाई so even the instructors are very interactive and funny like वो छेड़ रहे थे मुझे कि मैं डरी भी रही हूँ like डर 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 थोड़ा सा मैं बहुत fun था everybody is ओके, super nice there and experience is great तो बहुत अच्छी बात है यार। तो चल ठीक है, सबसे तेरा मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है आज तक का, अपार्ट फ्रॉम स्कूबा डाइविंग और जो तूने। अभी एक और मेमोरेबल मोमेंट पूछ लिया तूने हाँ तो मुझसे एक और। ओके अगर मैं जेन्युइनली बोलूं लाइक द मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ it was Christmas with this family. तुझे पता है। Genuinely, it was a wholesome environment, a wholesome vibe. It's so nice. I cannot explain it. Some things are only better felt. If you get it. So it was like that. ऐसा कुछ बहुत lavish नहीं था, but it was a great vibe, loving vibe. And then I'm getting them gifts. They got me gifts, and there was this big ass dinner table, and we have that ठीक है। अच्छा nice Christmas dinner. सारे तो बड़े सब गिफ्ट खोल रहे हैं. It was lovely. But यार genuinely an experience that I would remember my life. तो ये अभी लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस भी वो काफी अच्छा था क्रिसमस का, क्योंकि राइट नाउ आई एम मैं कोलकाता है, ठीक है। ही इज फ्रॉम मुंबई और स्टूडेंट है वो, और वो क्रिश्चियन है, सबसे बड़ी बात ये है। Ooh. तो उसने बोला कि क्योंकि शायद मैं पिछले दिवाली के टाइम पे मैं इंडिया में था, तो उसने बोला कि राहुल जब तू आएगा तो हम क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, तो हमें बजट बजट का कुछ नहीं देखना। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं यार, करेंगे, ठीक है। तो हमने पूरा पूरा रूम डेकोरेट में, रूम मेरा काफी अच्छा खासा बड़ा रूम है मेरा, ठीक है। तो हमने पूरा डेकोरेट किया अच्छे से, और पूरी लाइटनिंग, पूरी लाइट वाइट लगाई। अभी भी यहाँ देखेगी तो मैरी क्रिसमस अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, Oh. पोस्टर लगा हुआ है। और वी हैव इनवाइटेड अराउंड 15-20 फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने पूरा प्रॉपर पार्टी करी उस पूरी रात, ठीक है, पूरी रात पार्टी हुई थी। तो या तो हमने गिफ्ट्स दिए एक दूसरे को, अलग अलग सरप्राइजेस, अलग अलग वो दी गिफ्ट। तो मुझे बहुत मजा आया कि क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो क्रिश्चियन स्कूल से हुई है, ठीक है। Same high five. मेरी क्रिश्चियन स्कूल से। Convent में थी मैं. हाँ हाँ। तो अब कैथोलिक स्कूल के अंदर क्या होता है कि यार तुम्हें बहुत सारे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा सिखाया जाता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मैं पढ़ाई में कमजोर रहा हूँ, ठीक है, तुम पढ़ो ना High पढ़ो five. भाई, लेकिन लेकिन जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है ना तुम्हें, तुम लाइफ टाइम नहीं भूल, तुम लाइफ टाइम वो आदत पड़ जाती है। तो हाँ. तो इसलिए मुझे ना बहुत ज्यादा वो था। और ऊपर से हमारे वो होते थे, क्या कहते हैं यार, जो इसके क्रिसमस के आसपास, क्या कहते हैं उसको यार, नॉट ड्रामा इज लाइक, पूरी स्टोरी बताई जाती थी जीसस की, रोल प्ले होते Skits थे। होती है. Skits होती है. हाँ And the हाँ choir and everything. वो हाँ बिल्कुल लंबा चौड़ा उसका वो होता है. हाँ हाँ Function हाँ करते हैं. हाँ Annual function हाँ kind हाँ। of होता है. हाँ, I know. तो हर साल रोल प्ले भी होता था कि प्रॉपर तरीके से उनकी हिंदी में जीवन गाथा बोलते हैं और इंग्लिश में जितने भी लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ थी जैसे भी था, हाँ. पूरा स्टोरी बताई पूरी ना, एकदम हाँ, रोल I know. मिलते हाँ. थे अलग अलग। फिर मैं And एक it's so अलग। fascinating to हाँ get to like live it right now because हाँ मेरे साथ हाँ। भी सही था मैं बचपन से तो कॉन्वेंट स्कूल में हूँ तो हम्म। I knew the entire story of Jesus and everything कि ईस्टर क्यों एग्जैक्टली। मनाते हैं क्रिसमस में क्या होता है हाँ हाउ इज हाँ। मदर मेरी ये सब पूरा बताया जाता है बट घर पे हमने कभी नहीं मनाया लाइक द मैक्स आई कुड टेल माय पेरेंट्स वाज टेक मी टू चर्च एंड वो लोग लेके जाते भी थे बट उनको भी क्या पता यार वो हाँ तो अलग वो- religion है ना हाँ। and now that I get to experience this in real life and in another country in a French way हम्म। amazing. I think that's the best part of living abroad, that you get to experience so many new different like cultures and एग्जैक्टली। religions and customs. It's ट्रू। nice. हाँ, लाइक मैंने फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सबसे बढ़िया जो मेरा फनीएस्ट मोमेंट रहा है आज तक का, गुड फ्राइडे।
ओ गुड फ्राइडे। तो भाई मैं जब काम करता था ना ऑफिस के अंदर कहता, तो मेरा एक और क्रिश्चियन दोस्त था सामने ही। तो हाँ, वो क्या कहता था, वो क्रिसमस के टाइम पे केक वेक लेकर के आता था, और जब गुड फ्राइडे आता था तो लोग उसको वो बोलते भाई हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे। कहता भाई हैप्पी गुड फ्राइडे गुड नहीं होता फ्राइडे। इस हाँ, टाइम तो पे बोला जी। हैप्पी गुड फ्राइडे, ये तो मैंने कभी सुना नहीं। तो ये होता है। तो ना बहुत सारे फनी मोमेंट मेरे साथ रहे हैं। और एक और चीज बताता हूँ, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि छोटे छोटे जो फेस्टिवल्स होते हैं ना इंडिया के अंदर, नॉट फेस्टिवल, इज लाइक छोटे मोटे सेलिब्रेशन आई वुड से, जैसे कि वैलेंटाइन डे हो गया, वैलेंटाइन वीक जो होता है प्रॉपर, मैंने पेरिस के अंदर देखा है, आई एम टेलिंग यू भाई, लोग इतना स्पेंड करते हैं ना उन सब चीजों पे। Valentine's is a big thing in Paris. I think Paris is also known as the city of love. सिटी, And हाँ। जो city of love का जो वो हो गया फेस्टिवल, फेस्टिवल तो नहीं होता बट जो भी हो गया, डे हो हाँ गया, हाँ डे हो गया, ये हाँ। दोनों मिलके ना कुछ बवाल ही होता है। मुझे तो वैलेंटाइंस पे निकलना ही नहीं पसंद, मैं 2 साल निकली ही नहीं, मैं मुझे अच्छा। जेलस क्योंकि मैंने निकलना ही नहीं है घर से। भाई मैं निकला, मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। आई रियली लव टू एक्सप्लोर मार्केट। ठीक है कि मुझे डीप डाइव जाना एकदम, जा करके ना पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने की ना, अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी तुम देखते रहते हो, देखते रहते हो। तो कभी शातले लियाल, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कि अच्छा ये गिफ्ट्स भी है, ये गिफ्ट्स भी है। हाँ, और मैं खरीद भी लेता था, मैंने कहा दूंगा किसी, आई आई डोंट हैव एनीवन टू, है ना, कि गिव कि ये दूंगा या give उसको it दूंगा, to, लेकिन but I like लेकिन the idea of buying हाँ, it. कि ओके जो लोग खरीदते हैं और ऐसे ही प्रोडक्ट कुछ बनाकर इंडिया में देखते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर सुनिए कि इंडिया के कोई खरीदेगा खरीदेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। कल्चर बहुत डिफरेंट है ना, बहुत, हाँ वही बहुत कल्चरल डिफरेंट डिफरेंस है। आ जाता है। हाँ, हाँ। तो चल कमिंग बैक, सबसे वर्स्ट मोमेंट कौन सा रहा है तेरा अभी तक 2 साल के अंदर असिस्ताना का? वर्स्ट मोमेंट तो एकदम से वर्स्ट बोला ना, मतलब कुछ ना कुछ तो होंगे, आई थिंक लाइक कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही होंगे। बट वर्स्ट मोमेंट आई वुड से जब मैं पहले ही दिन आई थी, आई मीन आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड डिस्क्लोज इट राइट नाउ, नहीं बट ठीक। आई द फर्स्ट डे आई केम हियर, आई बुक्ड एन Airbnb विद अ फ्रेंड, नॉट विद अ फ्रेंड, फ्रेंड नहीं है वो, मतलब पहले भी नहीं थी, बट वी वर जस्ट 3 फ्रेंड्स, हम्म। एंड देन हमने चौथा बंदा, उसने बोला कि मैं आ जाती हूँ, तुम्हारे में एक जगह है, तो मतलब आई जस्ट पिच इन। तो मैंने कहा ठीक है, ओके डन, एंड देन उसकी अलग फ्लाइट थी, हमारी अलग फ्लाइट थी, वो हमसे 1 घंटे पहले आ गई थी, so she went into that Airbnb और हम लोग हाँ। लेट पहुंचे, एंड रात में she slept। ओह फक, फिर खटखटाते रहे हम तुम लोग, गेट? और मैं 21 ईयर्स की थी, मैं वो जेनुअनली लाइक बिल्कुल घर से निकले हुए बच्चे जैसे होते हैं, लाइक आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे फ्रेंच भी उतनी अच्छी वो नहीं आती थी, बिकॉज द टाइम व्हेन यू कम आल्सो यू आर अफ्रेड टू स्पीक फ्रेंच इन फ्रंट ऑफ फ्रेंच पीपल, बिकॉज आधा तो उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता, बिकॉज नहीं इंडिया आता, में हम नहीं आता। एक्सेंट से इतना हैबिचुअल नहीं होते हम्म। and stuff like that, तो it was so scary to be honest, मतलब I would say हम लोग रात को 8 बजे फ्लाइट लैंड करती है, आप 9-10 बजे तक निकलते हो, एंड देन हम लोग पता नहीं कैसे अपना रास्ता नेविगेट थ्रू करते करते रात को हम्म। 1-1:30 बजे तक वहां पहुंचे, एंड देन हमें वो 13 नंबर का घर नहीं मिल रहा था, लाइक जो Airbnb था वो नहीं मिल ओह। रहा था। व्हेन वी फाउंड दैट, हम उसे कॉल कर रहे हैं, वो लड़की सो गई है। तो एक फिर? घंटा हम लोग बाहर थे, एंड वी वर कॉलिंग दैट वुमन, उसने नहीं उठाया फोन, वो सो गई, एंड देन देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, जो 3 में से वन ऑफ द गर्ल्स, वो पहले आ चुकी थी, उसका सेकंड ईयर था, एंड शी वाज मोर कॉन्फिडेंट देन अस, क्योंकि उसको फ्रेंच बोलनी आती थी, तो शी लाइक उसने कुछ आवाज लगाई कि हे इज देयर एनीबॉडी टू हेल्प अस, तो ऊपर से लाइक लाइट जली थी, तो हाँ, उसने बोला कि इज देयर एनीबॉडी टू हेल्प अस। लकीली वो बंदा एयरबीएनबी का वो था, क्या ऑनर बोलते हैं, था। यस, तो ही केम ओह। डाउन, एंड देन उसने बोला, और हमने दिखाया, थैंकफुली मेरे फोन से बुकिंग थी, मैंने बुकिंग करी थी, तो मैंने दिखाया ये देखो ये है, ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये मैं ही हूँ, मैंने ही बुकिंग करी है। हमारे साथ एक तीसरी बंदी थी, आई थिंक शी स्लेप्ट, और हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं, एंड ही वाज सो मैड, क्योंकि 2 चाबियां थी, वो बंदी 2 चाबी लेके अंदर सो गई, ओह। एंड उस बंदे ने फिर अपनी तीसरी चाबी वो निकाल के लाया, सारे प्रूफ्स देखने के बाद, कि मेरा पासपोर्ट देखा, मेरा एयरबीएनबी की बुकिंग देखी, उसने बताया सब कुछ, सब अपने प्रूफ कर दिया कि हाँ हम ही हैं, एंड उसने ऐसे कर दिया। तो फिर he was like okay, उसने खोला, and then that girl was like oh my god, I'm so sorry you guys, I was jet lagged and I slept and I मतलब I गालियां don't नहीं want to दी, say much, I गाली। don't even know वो लड़की कौन थी, अच्छा, कहाँ गई, उसके बाद से हमारी कभी बात नहीं हुई उससे। कोई उसने बात नहीं। व्हाट्सएप पे ही मिली, अरे व्हाट्सएप पे लाइक आने से पहले हम लोग बात करते, तो व्हाट्सएप पे हाँ। हमने बात करी, शी वाज वेरी नाइस, उसने बोला हाँ मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर लेती हूँ, आई जस्ट लीव एट 7 इन द मॉर्निंग एंड ये एंड वो, एंड उसके बाद से वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिली। I just don't know. Maybe because she didn't want to face us. Of course, she would have been embarrassed too. गिल्ट में होगी ना, गिल्ट में होगी बेचारी। हाँ, गिल्ट में होगी, कोई बट नहीं ऐसे यार, भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि आपको हमेशा अच्छे अच्छे लोग ही मिलेंगे, लर्निंग। आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं, एंड यू हैव टू नेविगेट थ्रू ऑल ऑफ इट।
लर्निंग So that was भाई। like the worst moment. I mean, और कुछ भी होगा, but this was the one thing that came into my mind exactly when you said worst moment. So यार ये she was कोशमार हो Kim. गया एक तरीके का। Exactly, वो कोशमार ही हो गया. And वो इंडियन ही थी, हम जैसी ही थी, बात करी थी हमने, but then सो गई तो सो गई. Like she was careless. So careless बंदे होता है नहीं यार। होते हैं, carelessness की वजह से आपको भुगतना पड़ता है. यार होता है, मैंने बहुत लोग देखे हैं कि उनको नींद ज्यादा प्यार होती है एज कम्पेयर टू तो यार नींद प्यारी है, ठीक है, किसी ने मना नहीं करा, तो दो चाबी तो मत लेके जाना. जब उसकी दो कीज है तो फिर तो कोई चाबी, लेके जा. गेट खुला कैसे कि मतलब वो तो चाबी तो दोनों अंदर ही थी। तो तीसरी एक ओनर के पास तो अपनी होती है तीसरी, पर्सनल चाबी. अच्छा 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 अच्छा। वो ओनर बंदे ने हेल्प करी ना हमारी रात को 3 बजे. हाँ Just शिष्यों। imagine how scary that would be that we are three girls, 3 o'clock at night, हम लोग अपनी 80 kgs लगेज के साथ खड़े हैं because 30 to 1 kg, 30 to 1 kg and hand luggage. और हैंड मतलब लगेज। कितना 55-60 kg का इंसान होता है, मैं 80 kgs लगेज लेके चल रही थी. My back was like totally dead, हाथ दर्द कर रहे थे, पैर दर्द कर रहे थे. अब आप पूरा दिन ट्रैवल करके आते हो, it's very सही में tiring. भाई बहुत टायरिंग होता है बहुत। ओके, तो यार काफी मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा ये कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी कि हो सकता है. फर्स्ट So टाइम मैंने सुना इस बारे में, क्योंकि तो होता अभी है तो ना मैंने कि ये चीज बताई थी कि मेरी होस्ट फैमिली है, मैंने रेंट नहीं दिया, मैं घूमी, मैं फिरी, स्काई डाइव करा. सो दिस इज लाइक द रियलिटी चेक कि ऐसा भी होता है. तो होम सिकनेस होती है कभी ड्यूरिंग दिस टू बी ऑनेस्ट इट पीरियड? डिपेंड्स. मैं लास्ट ईयर अकेले रह रही थी, सो देयर वर मोमेंट्स आई वाज वेरी हैप्पी एंड देयर वर मोमेंट्स आई वाज मिसिंग माय फैमिली. बट देन आल्सो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु इज वेरी कनेक्टेड टू देयर पेरेंट्स. तो मैं हमेशा लाइक मम्मी को लैपटॉप पे कॉल करके आई एम जस्ट डूइंग एनीथिंग, लाइक मैं कपड़े तय कर रही हूँ अपने लॉन्ड्री के बाद है, मम्मी को कॉल मिला रखा है, कुछ भी कर रही हूँ रैंडम किसी को भी कॉल मिला रखा है. तो होम सिकनेस तो होती ही है ऑफ कोर्स. आप घर से दूर रहोगे तो कभी ना कभी तो लगेगा ही ना कि घर वाज बेटर. तो उसका पर बहुत अच्छा हमारे पास सोल्यूशन है. लैपटॉप पे लो तुम वीडियो कॉल पे एंड यू विल एक्चुअली जस्ट फील लाइक कि वो तुम्हारे साथ ही है. तो वो चीज दूर हो ओके, जाती है. इट्स फाइन, सही है यार। तो मैनेजेबल. मैनेजेबल। तो कभी कभी होता है ना कि सो आर यू गुड इन नेटवर्किंग here in maybe in general life, not in France or in general life? आई डोंट नो हाउ टू रिप्लाई टू दैट. आई मीन नॉट टू मच, आई वुड से बहुत ज्यादा नहीं. हम्म। सो मे बी तो एडवाइस देना चाहोगे आप, या चाहेगी तू, सॉरी, ठीक है, कि कि I think नेटवर्किंग। yes, definitely. Agar matlab one thing, yeah, also one thing that I really aspire to learn in my life is networking. And I think everybody should, because that is the problem to most of your solutions. Oh, that is the solution to most of your problems. उल्टा बोला मैंने. Actually, कोई नहीं। आपकी life में if you know people who will know people and who eventually know people who will help you. It's just like that. ट्रू यार, वो कहते हैं ना कि यार चलो ठीक है, वो आ नहीं रहा मुझे तो इट्स फाइन। It's okay, but it's like people who know how to do stuff to help you. That's it. सो नेटवर्किंग की क्या क्या किस तरीके से तुम नेटवर्किंग कर सकते हो विद असिस्टेंट्स और या तो is there any Assistant तो strategy, basically. not only assistant but with French family, जैसे तो अभी फ्रेंच फैमिली के अंदर रह रही है, तो आई एम डैम श्योर कि तुझे डिफिकल्टीज हुई होंगी शुरू शुरू में, कि किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता, तुझे डिफिकल्टीज फेस हुई होंगी, तो किस तरीके से तूने वो मैनेज किया? So host family के साथ अगर मैं देखूं, मतलब बात करूं तो हम्म नेटवर्किंग तो मैं नहीं बोलूंगी होस्ट फैमिली के साथ, बिकॉज आई नेवर हैड दैट इंटेंशन. मेरे को था हम्म कि उनके साथ मुझे एक रिलेशन बिल्ड करना है, हम्म बिकॉज आई एम गोइंग टू लिव विद दीज पीपल राइट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर हम्म एंटायर 1 year I'm going to live with them. So I हम्म was just focused on doing stuff for them that would make them feel nice, हम्म because they were also doing a lot for me. They were cooking for me every day. मतलब उन्होंने बोला उनके actually like they had they're a couple and they have 3 kids. Two of them have moved out, so they're only living there with their one girl who's हम्म 16 and the other one is me. So they were treating me like their own kid. They were cooking for me. साथ में हम खाना खा रहे थे, साथ में टीवी देख रहे थे. They were talking to me, क्या कर रही है, ये बता वो बता. And I like to talk a lot, तो मैं बात बहुत करती हूँ उनसे. हम्म। And ये करती हूँ. They were doing so much for me. So what I felt was like कि इतना कुछ कर रहे हैं कि कुछ तो मैं भी करूँ इनके लिए. हाँ राइट, बनता है। जस्ट दैट कि वो तो बनता है ना आपका. तो आई डोंट थिंक नेटवर्किंग एक बहुत अपने आप माइंड से आप लेके चलोगे. नेटवर्किंग 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 कुछ चीजें दिल से भी कर सकते हो आप होस्ट फैमिली के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल. कभी कभी दिमाग से तो नहीं, वट दिल से एवर भी फील्स सोचो। गुड टू यू. हम्म। व्हाट डिड यू से?
कभी-कभी दिमाग से नहीं, दिल से भी सोचो। एग्जैक्टली exactly. कभी कभी कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, तो होस्ट फैमिली के साथ जैसे होता है, उनके दिल से रिश्ते बनाने हैं, दिल से आपको तो रिश्ते रहना बनते है। हैं। इट राइट। डजेंट मैटर वो काम आए ना आए। नहीं, नॉट ओनली नेटवर्किंग पर्सपेक्टिव से इज़ लाइक नॉर्मल कि कभी-कभी उतना सोच नहीं मिलती है। मैंने देखा है बहुत बार कि नहीं सोच मिलती है फ्रेंच लोगों से तुम्हारी बीइंग एन इंडियन। जेन्युइनली बहुत डिफरेंस है, लाइक उनके कल्चर में, उनके रहन सहन में, उनके टाइमिंग्स में। वो लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं, मतलब हुँ, पर्टिकुलर चीज पे पर्टिकुलर चीज करनी है, हुँ, ऐसे हुँ। कुछ भी नहीं करना हमारी तरह। एंड बहुत सारी चीजें होती है जो बिल्कुल ही तीर घाट मीर घाट है। क्या है? यू हैव टू, मतलब बिल्कुल ही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, एंड यू ओके, हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड उसके मिडल लिए। ग्राउंड, ओके। या यार ये तो बात सच है। तो ठीक है, तो कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड फैमिली ने कुछ बोला तुझे कि यार नहीं ये नहीं करना, रोका-टोकी होती है ना कि घर के अंदर तो क्या होता है कि भाई अपन कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मेरा ना खाने का टाइम फिक्स नहीं है, बिल्कुल ही खाने का टाइम फिक्स नहीं है। आई विल वेक अप बराबर। एट एनी आवर ऑफ द डे, लाइक सुबह-सुबह तो कभी भी उठ सकते हो आप। एंड देन इनके फिक्स होता है कि दे विल ईट 12 से 1 के बीच में लंच, व्हिच इज़ बिग लंच, हाँ, ठीक है? एंड देन दे विल हैव अ गूते, कुड बी अ हाँ। गूते, मोस्ट पीपल डोंट लाइक, बड़े लोग नहीं खाते, बच्चे लोग खाते हैं हम जिस हुँ, एज में, 4 या 5 बजे के बीच में। एंड देन 7 टू 8 दे विल हैव द डिनर, एंड उसके बाद वो लोग खाना नहीं खाएँगे। अब ये तो इंडिया में हमने कभी सीखा ही नहीं ना। मुझे हमारे आज यहाँ भी तो याद सुबह है में 10 मेरे बजे घर में ब्रेकफास्ट, 10 से 11 10 के बजे तो बीच में प्लानिंग होती थी ब्रेकफास्ट। क्या बनाना है रात को डिनर के अंदर। एग्जैक्टली जिस स्कूल हम जाते थे, सुबह 7 बजे कुछ ब्रेड या दूध पी के जा रहे हैं, फिर 10 बजे खा रहे हैं, फिर 2 बजे आके खा रहे हैं, फिर 4-5 बजे ट्यूशन के बाद तो खाना ही है ना, मतलब वो तो हाँ, वो है अपना मोमोज वोमोज खाने थे। और उसके बाद 8-9 बजे डिनर हो रहा है, और फिर रात को मिडनाइट स्नैक्स भी चल रहे हैं। अब यहाँ पे वो नहीं होता था। अब मैंने क्या करा, इनिशियली आकर मैं उठ पटांग टाइम पे कुछ भी खा रही हूँ, 12 बजे ब्रेकफास्ट करा, और जितना ये लोग प्रॉपर मुझे पोर्शन देते थे, उतना मैं खा ही नहीं पाती थी, क्योंकि इन लोगों का बिग पोर्शंस होते हैं। अब मेरा पेट छोटा था, मतलब इतने तो पेट भर गया मेरा। उसके बाद बचा मैं बाद में खाऊंगी। मैं कह रही हूँ ये मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। मैं बॉक्स बना के फ्रिज में रखती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ, ओ रखती जा रही भाई हूँ। फिर खराब कुछ नहीं नहीं, हो मैं खाना? बाद में खा लेती थी। तो बट खा दे वर लिया। लाइक इशिका बीच में मत खा, बीच में मत खा, तुझे बाद में भूख लगेगी। तो जैसे शाम को मुझे रामेन खाने का मन करा, मैं 5 बजे स्कूल से आई, 5 बजे मैं रामेन ले आई। अब 5 बजे तो हमारा स्नैक टाइम है ना, तो मुझे रामेन खाने का मन करा, मैंने रामेन बना लिए। अब वो ऐसे देख रहे हैं, इशिका, एंड आई एम लाइक हम्म, क्या, एंड लाइक तू अब रामेन खा रही है तो तू खाना नहीं खाएगी? एंड मैं खा लूंगी मैं खाना। फिर जब मैं खाना खाने बैठी तो मैंने पूरा फिनिश नहीं करा। तो हम्म, दे वर लाइक देखा, हमने इसलिए बोला था। तो इट वाज लाइक अ लिटिल बिट ऐसे ऐसे इनिशियली, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला कि तू खाना टाइम पे खाया कर, ऐसा अच्छा नहीं होता। उनके हम्म, उनमें एक फिक्स टाइम होना चाहिए। फिक्स टाइम। हमने वो बचपन से कभी सीखा ही नहीं। हाँ, मेरा तो फिक्स टाइम है ही नहीं। क्योंकि मैं भी अभी ऑफिस के अंदर काम, क्योंकि जब मैं स्पेशली ये मैंने चीज सीखी थी, सीखी क्या मतलब पंक्चुअल हुआ था, डिसिप्लिन लेकर के आया था मैं यहाँ पे कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट हम्म। इन नीस इन साउथ ऑफ फ्रांस। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता था 11:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। तो बहुत रश होता था, बहुत रश होता था कि मतलब बहुत बुरी हालत होता था, मैं सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। तो मैंने कहा, मैंने टाइम था। शुरू के 1 महीना पूछा ही नहीं, मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं, होगा होगा कस्टमर है कभी भी आ जाएंगे। तो फिर बाद में मुझे पता लगा कि नहीं यार, ये टाइमिंग होता है फ्रेंच लोगों का लंच का। तो इतने हम्म। से इतने बजे तक बहुत भीड़ रहेगी, क्योंकि फिर मेरे उसने बोला था, लाइक मैं जो भी मेरा बॉस था, तो उसने मुझे बोला कि इतने से इतने बजे तक राहुल तुझे काम करना ही पड़ेगा एक्टिवली होके। तो देन फिर धीरे धीरे फिर मुझे जैसे कॉलेज के अंदर होता था, मैंने कॉलेज के अंदर 12 बजे ब्रेक होना इज फाइन, इज नॉर्मल थिंग, ठीक है, मैंने इतना कंसिडर नहीं किया। फिर मैं किसी कंपनी में, फिर मैं उस टाइम पे सबसे पहले मैं स्टार्टअप के अंदर मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो उसका कल्चर ही ऐसा था कि 12 बजे से 2 बजे तक नो वर्क। एक 12 से 1 तुम अपना खाना खाओगे, और 1 से 2 बजे तक जो भी तुम स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो तुम चूज करो, चाहे तुम जिम करो, चाहे तुम टेनिस खेलो, चाहे तुम वॉक पे जाओ, जैसे मिल जाओ, तुम्हें वो करना ही करना है, वो कंपलसरी है। ठीक है, ये नहीं चॉइस नहीं है, वो कंपलसरी है कि कोई एक स्पोर्ट्स चूज करो और करो। तो 12 से 2 ना बिल्कुल वैसा होता था। तो फिर बाकी का जो टाइमिंग होता था, फिर देन जो भी तुम्हारे ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं, जो भी होता है वो बात अलग है। सो या तो ये चीज मैंने फिर अपने में डिसिप्लिन मैंने लेकर गया, मैंने कहा कि 12 से 2 मुझे 1 घंटा खाना है और 1 घंटा एक्सरसाइज। तो आज भी मैं जब काम करता हूँ या जॉब वॉब, मेरी सोसाइटी जनरल के अंदर मैं काम करता हूँ, तो आज भी 12 से 2, 12 से 12:30 या 1 बजे तक खाना खाया, फिर 1 घंटा। हम्म। अब खेलता वेलता इतना ज्यादा नहीं हूँ, क्योंकि मैं शाम को जिम जाता हूँ, लेकिन वो 1 घंटा कभी वॉक कर लिया, कभी घर में बात ऑन कर ली टाइम। कभी। सो ये होता है। बिकॉज दैट वाज रियली डिफरेंट। इवन इनिशियली जब मैं आई थी तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं हुआ। आई वाज लिविंग अलोन, सो आई वाज लिविंग ऑन माय ओन टर्म्स। नाउ आई एम लिविंग विद द फैमिली,
So I So have to like manage. It's not weird at all. वो लोग भी बहुत प्यार से बोलते हैं, मैं भी बहुत प्यार से मतलब बोलती हूँ, अच्छा ठीक है आंटी मुझे भूख नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, and like उससे कि तूने पहले खाना खाया इसलिए तू खाना नहीं खाएगी, अब खाना पड़ेगा, जैसे होता है ना मम्मी कई बार टोकती खाना पड़ेगा, हाँ like खाना पड़ेगा, stuff like that. But धीरे धीरे हो जाता है. But this is one of the example जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना टाइम को लेके खाने को लेके इतना वो हो जाएगा. But that is what you learn जब आप बाहर आते हो and that true. see new things and experience a new world altogether. तो इशिका, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एकेडमी कौन सी चूज करनी चाहिए while applying for this program? So देखो तो first things first, जरूरी नहीं है कि जो अकेडमी के लिए आप अप्लाई करो वही आपको मिले. इन मोस्ट केसेस मिल जाती है, इन मोस्ट केसेस नहीं मिलती है. फर्स्ट ईयर मैंने अप्लाई करा था सब कुछ साउथ का. आई वाज मैड अबाउट द साउथ ऑफ फ्रांस. मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्स अकेडमी द नीस, अकेडमी द आइक्स मार्सेई और हाँ, जो भी साथ के नीचे की एक्स तीनों है मार्स मैंने सही है. नीचे. हाँ, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मिला अकेडमी द नॉर्थ वेस्ट में जाकर. ओ भाई. was quite bizarre for a lot of people कि ये क्या हुआ, मतलब मेरे लिए खुद भी था कि ये क्या हुआ, मतलब ऐसे कैसे हो गया. एंड दिस टाइम मेरी पहली चॉइस अकेडमी द वेक्साई थी और उसके बाद हमने पता नहीं क्या करा था, हमने फ्रेंड्स सबने मिलके करा था एंड आई गॉट अकेडमी द वेक्साई. सो इट वाओ. डिपेंड्स. तो जो अगर आप करते हो जरूरी नहीं है वो मिले, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स. अगर आपको पेरिस बिग सिटी लाइफ चाहिए तो चूज इल de France वाली. अकादमी द पैरिस ज्यादातर नहीं मिलता है लेकिन वैसा ही जरूर मिल जाता है बिकॉज इट्स अ बिग 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 अकेडमी एंड देन खरीदाई ओके. भी मिल जाता है आराम से. बट keep in mind you need to have your savings, like it's a big amount. या. और क्योंकि यहाँ का रेंट बहुत ज्यादा है, सो ऑफ कोर्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो मच हायर देन अदर सिटीज बिकॉज इट्स अ बिग सिटी. इवन अगर आप वेस्ट साइड में भी घर ले रहे हो तो रेंट विल बी हाई, higher than other cities. It will not be less ओके. unless you luck out. मतलब you max out in the luck department. तेरे जैसा कि फ्री हाँ, में रहने को मिल गया. बिल्कुल फ्री में ही होता है, बट नहीं होता है तो you need to have certain savings. Otherwise, academy the non मेरा ऑरेंज सिटी बहुत बढ़िया थी. People are so happy. South में बहुत बढ़िया होता है, मौसम मौसम अच्छा होता है भाई and सही it's में not gloomy 2 साल रहा as. हूँ साउथ में. हाँ, so you would know better. नीस. But just as in key, if you want to save up some bucks and हाँ हाँ. travel, just pick a medium-sized city. Small तो मैं नहीं बोलूंगी because बिल्कुल ही डल हो जाएगा. Medium-sized city, and then if you have like want to live and have fun every single day, so choose a big city. But keep in mind that expenses will be more than the salary you're getting. या So सो it's advisable to have some savings. फाइनेंस अच्छे से मैनेज करने आनी चाहिए. Exactly. You should be very good in financial management. और व्हाट अबाउट डे मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट आई थिंक एनीवेज आसिस्ता कांगले में काम 12 hours a week होता है, तो any which ways I don't think you would have any trouble managing your time क्योंकि 12 hours a week है. 12 तो आप क्लास में देते हो, ऑफ कोर्स क्लास के बाहर भी 2-2 hours का ब्रेक होता है एंड लाइक लंच ब्रेक्स होते हैं एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग समटाइम्स सम पेपर्स और समथिंग लाइक फ्लैश कार्ड्स प्रीमियर में आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, क्लास मटेरियल्स वो करने पड़ते हैं, तो आप ज्यादा करते हो लेकिन स्टिल इट्स नॉट टू मच कि आपसे मैनेज ही नहीं. ओके. It's तो better मे to बी चल 3 एडवाइस जो तू अपकमिंग असिस्टेंट्स को देना चाहती है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट. So maybe 3 advices that you want to share, you want to give to upcoming assistants. That's a very big. मुझे तो लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे ऊपर, इसमें एडवाइस देनी पड़ेगी मुझे अपकमिंग असिस्टेंट्स को, वो लोग देख यार के मेरी अब बात सुन भी अब रहे 2 साल कर रखे हैं ना तूने. 2 साल तूने इन्वेस्ट किया है इस प्रोग्राम के अंदर, तो तूने काफी कुछ सीखी होंगी. और तूने लिखा होगा अपने नोट्स के अंदर, यार मुझे इस साल ये नहीं करना, इस साल ये नहीं करना, यू नो. या जब मैं बाद में आऊंगी फ्रांस के अंदर तो मैं ये चीज दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, ये मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करूंगी. बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया मुझे सच में, मेरा तो माइंड ब्लैंक हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं. बट ओके चलो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट दैट यू शुड बी वेरी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस. फर्स्टली हम लोग जब इंडिया से आते हैं तो एक बहुत फिक्स्ड हमारा माइंड सेट होता है, एक बहुत टेस्ट बड बहुत सेट होता है, उसमें मत रहो. मतलब फर्स्ट एडवाइस मेरी यही होगी कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरी थिंकिंग इस तरीके से है दूसरों की ऐसी है तो मैं उससे मैच नहीं कर सकती, नहीं. अपनी माइंड को इतना खोलो ताकि आप दूसरों की चीजों को भी अडाप्ट कर सको. खाना जैसे बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, बहुत लोग नहीं करते, लाइक इंडियन 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 ही कुकर है,
ट्राई तो करो दूसरा चीजें। आप अपनी कंट्री से बाहर आए हो, आप लोग वापस जाने वाले हो ना 7 महीने बाद, तो कर लेना। यहाँ पे ट्राई तो करो, नहीं अच्छा लगा तो आपकी चॉइस है, आपको नहीं अच्छा लगा, बट आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। वैसे ही बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, जस्ट बी ओपन, बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। They're gonna be good, they're gonna be bad, but they're gonna change your life for good. दैट्स ग्रेट। एंड सेकंड, ओ चलो थर्ड, दो तो दे दी तूने, थर्ड। दो दे दी, देखा मैंने एक में दो दे दी, वाह मुझे एक भी नहीं आ रही थी। थर्ड वुड बी, अगर, बिकॉज मोस्ट असिस्टेंट्स वेकेशन के लिए, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन वही चीज जो हमने अभी डिस्कस करी, बट यू शुड नो हाउ टू डू दैट। एडवाइस इज बुक योर ट्रैवल इन एडवांस, बिकॉज अगर लेट करा, बिकॉज मैंने ऐसा करा, मैंने 2 बार करा है, मैंने बिल्कुल लेट कर दिया एंड तक जाते जाते, यानी एक हफ्ते पहले करा, एंड सेम थिंग दैट वाज फॉर 20 euros कॉस्ट मी 40 euros। ट्रेन टिकट्स तो बिल्कुल 100 से भी ऊपर पहुंच जाती है, सम डेज इट्स 40 एंड देन अदर, लाइक लास्ट वीक देखोगे आप तो इट्स 120। इट्स जस्ट बेटर टू टेक आउट सम टाइम एंड पहले बुक करो, ताकि वही सेम चीज आप अननेसेसरी अमाउंट में लाइक ज्यादा स्पेंड ना करो उस पर। ओके। प्लान योर ट्रैवल्स एंड प्लान योर एक्सपेंसेस, लाइक डेली एक्सपेंसेस, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड आई वुड ट्रू। से कोई ऐप आता है, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देती, बट app आता है and you can track your expenses, so you should know what's your fixed amount of expenses and what are your variables, and then what amount of money you're willing to spend on travel, so that या is देयर आर सो हाँ। मेनी एप्लीकेशंस एग्जिस्ट ऑन। हाँ, like मुझे नहीं पता, मैं यूज नहीं करती, but it's a good way because of course I don't pay rent, so and also I came with a decent amount of savings, so मे बी आई कैन मेक अ एक्सेल फाइल, अ सिंपल एक्सेल फाइल, so I can share with all the assistants if yes you want. exactly, if you can help them definitely, बहुत बड़ी help हो जाती है ये तो। Okay, personal finance budgeting. Otherwise, you can Oh, contact Rahul Sachdeva. so you can pay me only 5 euros for that. No worries. For the individual person. Affordable है यार, affordable है. Cool है यार, हम affordable। Okay. तो थैंक यू सो मच यार ऋषिका, तूने अपना टाइम निकाला, इतना कीमती समय निकाल के कीमती इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। You're welcome. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, ऋषिका से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, ईमेल एड्रेस मैं मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सो यू कैन ईमेल कांटेक्ट हर। चेक भी नहीं करती यार, मतलब आई एम सो सॉरी, बट अच्छा मैं चलो, ईमेल, इंस्टाग्राम यार, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम कर सकते हो, व्हाट्सएप, मतलब नंबर तो खैर आई डोंट थिंक नंबर मत डालियो, बट इंस्टाग्राम डाल दे चल, हाँ। चलो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम, क्योंकि मेल्स में चेक नहीं करती है, वो मिस आउट हो जाती है। ओके, इंस्टाग्राम, या तो मुझे ईमेल कर देना, मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ। ठीक है। थैंक यू। Okay, had a great time. Bye bye. बाय।